Hi, welcome to the next session of the complex numbers. In this session, we'll discuss about conjugate and arguments and its problems. In the previous video, we discussed about the properties of the conjugate and argument. In this video, we'll discuss about the numericals. The first problem here is 2 plus iota upon 4 iota plus 1 plus iota square. What you have to do, you have to find the conjugate of this thing and its argument. This is 2 plus iota upon 4 iota plus 1 plus iota whole square. For the conjugate, we know that we have to arrange this thing into a plus iota b form, and then conjugate of a plus iota b is a minus iota b. So for the first thing is we have to convert it into a plus iota b form. For that, we have the denominator and we have to remove the denominator, iota in the denominator. Now this thing is become 2 plus iota upon 4 iota plus 1 plus iota square. This is 1 a square, then b square is iota square, that is minus 1 plus 2 iota, right? And this becomes 2 plus iota upon 4 iota plus 2 iota is 6 iota, and 1 minus 1 is 0. So we reduced it to this form. Again we have the iota in the denominator. Now further, this 2 plus iota upon 6 iota. Let's multiply denominator and numerator with minus 6 iota. Because my iota into iota square is minus 1, and this minus reduce that minus sign, and this becomes 2 plus iota into minus 6 iota. Minus 6 iota into 2 is minus 12 iota, and 6 iota into iota, that is minus, that is plus 6 upon 6 into 6 is 36, and we left with the cancel out the 6 from the and from it become 1 minus 2 iota upon 6, right? Now this is 1 minus 2 iota upon 6, and this a plus iota b form, that is 1 upon 6 minus 1 upon 3 iota. Hence z bar conjugate, we replace this minus sign with a plus sign, that is 1 by 6 plus 1 by 3 iota. That's it. So this is the conjugate, right? Now this was the conjugate. Now the problem of argument. यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है सबको आर्ग्यूमेंट निकालने में. तरीका वही है जैसे लास्ट टाइम सीखा था. tan थीटा निकालेंगे mod of y by x, पहले mod निकालेंगे. That here mod is mod of minus 1 by 3 upon 1 by 6, that is mod of minus 2, which is 2. Now theta is tan inverse of 2. Now ये हमारा आर्ग्यूमेंट निकला. अभी हम चेक करना है कि आर्ग्यूमेंट सही है या नहीं है. x देखते हैं हम 1 by 6 है और y क्या है minus 1 by 3 है. x 1 by 6 है, y minus 1 by 3, यानी कि क्वाड्रेंट के अंदर ही कौन सा क्वाड्रेंट होगा इसका फोर्थ क्वाड्रेंट. तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट. तो tan थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाए. थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 2 है. फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, राइट. दिस इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट. इसका आर्ग्यूमेंट यही रहेगा, दैट इज 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसी वैल्यू आती है. अगर कोई आपसे पूछता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, अब हमें पता है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है आर्ग्यूमेंट वेरी होता है 0 से 2 पाई. अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कोई पूछ लेता है आपसे तो वो उसकी रेंज कहाँ तक होती है माइनस पाई से पाई. अगर माइनस पाई से पाई के लास्ट टाइम वीडियो में देखा था रूल क्या होता है, अगर ये वैल्यू बड़ी है पाई से तो हम माइनस 2 पाई करते हैं, और माइनस पाई से छोटी है तो 2 पाई प्लस करते हैं. ये वैल्यू ऑब्वियसली पाई से बड़ी है तो हम 2 पाई माइनस करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे 2 पाई माइनस करेंगे. वी लेफ्ट विथ माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, and this is the principal argument, right? Next problem, iota z cube plus z square minus z plus iota equal to 0. Show that mod of z is 1, right? This is given quantity iota z cube plus z square minus z plus iota equal to 0. Now let's simplify this thing. हमें प्रूव करना है mod z 1 है. सिंप्लीफाई करके देखें. इसके अंदर से मैं क्वांटिटी से कॉमन ले लेता हूँ आयटा जेड स्क्वायर. इसमें आयटा जेड स्क्वायर कॉमन लिया, आयटा जेड क्यूब में से आई लेफ्ट विद जेड, राइट. और यहाँ पे आयटा नहीं था, आयटा कॉमन ले चुका हूँ, तो अंदर क्या बचेगा माइनस आयटा, राइट. तो आयटा इंटू माइनस आयटा ही 1 होता है, प्लस आयटा इंटू माइनस आयटा इज 1. सो यहाँ क्या बचेगा माइनस आयटा, माइनस आयटा. यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, आई लेफ्ट विद जेड माइनस आयटा.
लग नहीं रहा था कि कॉमन कुछ आ सकता है, लेकिन जब लेंगे तो पता लगेगा आपको. नाउ दिस इज आयोटा z स्क्वायर माइनस 1 एंड z माइनस आयोटा, राइट. नाउ दिस इज इक्वल टू 0. इस तरह की फॉर्म आती है, दोनों में से एक चीज 0 होगी. लेट्स टेक z इक्वल माइनस आयोटा इज 0 फर्स्ट केस, एंड z माइनस आयोटा 0 मींस z इक्वल टू आयोटा, राइट. इस केस को लेके देखें, z इक्वल टू आयोटा, और इस केस में मॉड z की वैल्यू क्या आ गई 1. इस केस को लेके देखें, आयोटा z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड दैट मींस z स्क्वायर इज 1 अपॉन आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा. z स्क्वायर माइनस आयोटा है, ठीक है, यानी कि मॉड ऑफ z स्क्वायर क्या है 1 है, मॉड z स्क्वायर 1 है. अगर मॉड z स्क्वायर 1 है तो इसका मतलब मॉड z भी 1 ही होगा. तो इन दोनों केस में मॉड z की वैल्यू 1 आई, हेंस जो मैं प्रूव करना था हमने वो प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव. और प्रॉब्लम देख लेते हैं. 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x. ऐसी प्रॉब्लम देखें, 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर x, दैट इज मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर x इक्वल टू 2 रेज टू पावर x. या मॉड आएगा बिकॉज ये 2 रेज टू पावर x जो है वो रियल नंबर है, और 1 माइनस आयोटा होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसलिए मॉड लगा मॉड होगा क्वेश्चन के अंदर, तभी तो रियल नंबर से रियल नंबर इक्वेट होगा. अगर 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर x कुछ 2 रेज टू पावर x, x की वैल्यू निकाल ली, मॉड की वैल्यू निकाल ली हमने, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, एंड दैट इज रूट 2 रेज टू पावर x is 2 रेज टू पावर x, यानी कि 2 रेज टू पावर x by 2 is 2 रेज टू पावर x. x को इधर ले आते हैं, 2 रेज टू पावर x by 2 minus x is equal to 1, and 2 raised to power minus x by 2 is 1. कुछ भी पावर 2 की पावर कुछ भी रखेंगे 1 आता है, तो यानी माइनस एक्स बाय 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0. आंसर हियर इज 0. ठीक है, थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन चलें. ये प्रॉब्लम वो है जो आप देख के छोड़ देते हो, एग्जाम में आती है प्रॉब्लम तुरंत देख के छोड़ देते हैं, ये इस तरह की प्रॉब्लम है. इफ अल्फा एंड बीटा आर different complex number with mod of beta is equal to 1, then find mod of beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta. ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी. if alpha beta are the different complex number with beta is equal to 1, then find beta minus alpha upon 1 minus alpha bar beta. तो हमें गिवन क्या है, पहले चीज हम देखें, बीटा बार, बीटा की वैल्यू क्या है 1, mod beta is 1, यानी कि मॉड बीटा 1 यानी कि बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज 1. ये बात फाइनल है. अब हमें मॉड निकालना है इसका, नहीं मॉड निकालना है इसका मतलब बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा. ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू, इसे कॉन्जुगेट लिख दूं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट पूरे का. ठीक है, और हम वही प्रॉपर्टीज लगाएं कॉन्जुगेट की जो इससे पहले के पहले वाले वीडियो में था. ठीक है, प्रॉपर्टी लगाते हैं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी लगाई, बीटा बार माइनस अल्फा बार, वही कॉन्जुगेट नीचे लगेगा, 1 बार इज 1 माइनस अल्फा, अल्फा बार उसके ऊपर भी एक बार लगा दिया तो अल्फा रह गया, अब बीटा के ऊपर एक बार आ गया. ठीक है, बार के ऊपर बार है तो बार रिमूव हो जाता है, चीज आ गई. अब इन दोनों मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, फिर और कोई रास्ता नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई करें, बीटा इंटू बीटा बार, बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार अपॉन 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बार. ठीक है, ये वैल्यू आ गई. अब बीटा इंटू बीटा बार की वैल्यू क्या होगी, ये 1 है, हमें अभी देखा था, इसकी वैल्यू 1 पुट करके देखें, 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा. यहाँ पे अल्फा अल्फा बार है और बीटा बीटा बार की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 1, एज छोड़ दें और ऊपर नीचे चेक करें, 1 1 सेम है, ये क्वांटिटी सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है. आंसर क्या होगा 1. कट जाएंगे दोनों वैल्यूज. हमने देखा कि इसकी वैल्यू क्या आई 1 आई. एक लास्ट प्रॉब्लम और करके देखते हैं.
2z equal to mod of z plus 2 iota. ठीक है, 2z equal to mod of z plus 2 iota. फाइंड z. ये इक्वेशन वाला फॉर्म आ गया. 2z equal to mod z plus 2 iota. ये इक्वेशन टाइप की फॉर्म आ गई. ठीक है, let z is equals to x plus iota y. Right, now mod z would be under root of x square plus y square. Right, and 2z की बात हो रही है. 2z वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ x plus iota y. सो पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर. 2z equal to mod z है, सो पुट करके देखें. 2z यानी कि ट्वाइस ऑफ x plus iota y इक्वल टू mod z क्या है? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 iota. पुट कर दिया मैंने. ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर ब्यूटी ये होती है कि रियल नंबर को रियल नंबर से इक्वेट कर दो और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से इक्वेट कर दिया. ये रियल नंबर क्या है? 2x. रियल नंबर क्या है? अंडर रूट x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी कि 2x को मैंने इक्वेट किया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर. कॉम्प्लेक्स टर्म क्या है? सॉरी, इमेजिनरी टर्म क्या है? 2 into y. 2y. ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 2 iota. तो y यहाँ से क्या आ गया? iota. राइट, y इज इक्वल टू iota. इस वैल्यू में पुट करें. पुट करते क्या आएगा? 2x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस iota. स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट इज 4x स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस iota and 3x स्क्वायर इज iota. राइट, सॉरी यहाँ पे 2y iota था. y इक्वल टू 1. ठीक है, y इक्वल टू 1 आ गया है ना. x की बात करें तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? x हियर बिकम्स प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3. ठीक है, और y की वैल्यू क्या है? 1. अब ये देखें, इक्वेशन में पुट करके देखें. 2z इक्वल टू mod z प्लस 2 iota. इन दोनों वैल्यूज को पुट करके देखोगे तो नेगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगी. दैट इज 1 अपॉन रूट 3 प्लस iota इज द क्वांटिटी ऑफ z. कोई माइनस डाल के देखें इसके अंदर तो ये हो जाएगा 2z इज व्हाट. पुट करेंगे इसके अंदर हम माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस iota विल नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. Hence the only solution is z equal to 1 plus 1 upon root 3 plus iota. Thank you for now. In next video we'll discuss about problems based on conditional identities. कुछ conditional identities की problem और discuss करेंगे next video. Thank you.